Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we start your new chapter, your chapter 8, soil resources. Okay, this chapter is very important for you because in the annual exam from this chapter near about 10 marks का आपको एग्जाम में आना है. Okay, so this chapter is very important beta. Okay, so listen carefully, understood carefully. Okay, if somewhere doubt in this video, we discuss in Zoom app. Okay, all the doubts in this topic. Okay, so I'm saying again, in this chapter we discuss what is the soil, and after that importance of soil and formation of soil. Okay, or after that we discuss the main topic, soil resources of India. Okay, especially in our country total 5 type of soil में dividation है. Okay, alluvial soil, black soil, red soil and laterite soil, or one more, mountain soil. Okay, so we discuss in this chapter this all the topic, and now today we discuss only what is the soil and importance of soil or soil formations. Okay, so this is a very small topic or interesting topic. Okay, and important also. Okay, so listen carefully. So what is the soil? In simple language हम always बोलते हैं कि the uppermost layer of earth crust is called soil. कि means this is earth surface, और हमारी अर्थ सरफेस का जो अपर मोस्ट लेयर है, जो लूज पार्टिकल्स है, थिन लेयर जो है, इसी को हम बोलते हैं सॉइल. और यू नोट ऑल, इस सॉइल की फॉर्मेशन के लिए 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं. ओके, और अगर इसका इरोजन हो जाए इन फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट इनफ होते हैं इसको इरोजन होने के लिए. ओके, फ्लूइडिटी को डिक्रीज करने के लिए, लेकिन फॉर्मेशन के लिए 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं. ओके, सो सॉइल के, सॉइल इज लूज मटेरियल दैट लाई ऑन द टॉप ऑफ द लैंड. एक लूज मटेरियल है, दोज आर फाउंड ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ओके, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ many different things including rocks, mineral, water, air, like this. So many things are included for the formation of soil. Okay, तो soil क्या है? It is a loose material that lie on the top of the land, and it is a mixture of so many things, different things like rocks, mineral, water and air. Okay, this is the definition of soil. So now importance of soil. So soil is the medium in which plant grow. You know, to all your plant always grow in soil. Okay, and plant जो क्या करते हैं, provide food for the all the land creatures. जो भी living things हैं on the land, उनको जो food जो provide करवा रहे हैं वो plant करवा रहे हैं. Okay, thus all living things depend directly or indirectly on the soil for the food. The first importance of soil is soil is medium in which plant grow, and plants provide food for all the land creatures. Thus all living things depend directly or indirectly on soil for food. This is the first point of importance of soil. Now second point, soil is very important natural resource of India. इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यू नो, टोल इंडिया की 70 to 80% पॉपुलेशन टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल है? ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर. ओके, सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज बेसिकली डिपेंड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. यू नो, इफ फर्टिलिटी इज मोर तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, इफ फर्टिलिटी इज लेस तो प्रोडक्शन कम होगी. ओके, सो बेसिकली डिपेंड ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. फूड प्रोडक्ट लाइक pulses,
fruit and vegetables are obtained indirectly from the soil. हम जनरली बोलते हैं हम pulses, fruit या vegetable जो है, fruit जो है like tree से या plant से get कर रहे हैं, लेकिन plant कहाँ grow करें? Soil में. तो means we are totally indirectly depend on soil because these all the things जो grow हो रही है वो soil में हो रही है. Okay, so indirectly from the soil. तो soil very important natural resources of India. India के लिए क्यों important? Because about 70 to 80% population totally engage in agriculture activity. Okay, so basically dependent on the fertility of soil. और ये सारी चीजें depend है agriculture किसके ऊपर? Fertility of soil. Food product like pulses, fruit and vegetables are obtained from the soil. Clear second point? And after that, third point, successful farming depends largely on soil. आपको कोई फार्मिंग सक्सेसफुल करनी है तो इट्स आल्सो डिपेंड ऑन सॉइल, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इज डिपेंड ऑन फर्टिलिटी. द रिच डीप फर्टाइल सॉइल ऑफ गंगा प्लेन, especially its delta and coastal plain of Kerala, support high density of population through agriculture prosperity. कि means successful farming जो होती है कि largely depend on soil. और rich deep fertile soil, if we see map, this is map of India, और ये आपको जो green colors दिख रहा है it is a alluvial soil. Those are most fertile soil. ये सबसे most fertile soil है. Okay, so especially we can say Ganga plain. If we talk about Ganga plain, these are Ganga plain. These are the Ganga plain. तो क्या बोलते हैं? Successful farming depend largely on the soil of the rich deep soil, especially in Ganga plain. These are Ganga plain. Okay, especially is delta. This is your delta. This is your delta region. Okay, and coastal plain of Kerala. This is the coastal plain of Kerala. And high density of population through the agriculture prosperity. मीन्स यहाँ पर क्या है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है, और ड्यू टू दैट यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है. क्लियर? Understood all? कि means successful farming depend largely on the soil of the rich deep fertile soil Ganga plain, especially its delta or coastal plain of Kerala, support high density population through the agriculture prosperity. Okay, कि agriculture की वजह से वहां पॉपुलेशन डेंसिटी है, और एग्रीकल्चर क्यों हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू द सॉइल. ओके, तो दिस आर द 3 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल. सम टाइम यहां से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ soil. Okay, and 1 marks का क्वेश्चन आता है कि what is the soil. Okay, so now we start. So next topic, soil formation. Soil formation. So there are number of factors which contribute to the formation of soil and its fertility. A number of factors, those are contribute to the formation of soil and fertility. And some of important factor of soil formation are mentioned below. तो कुछ factors हम discuss करेंगे in the below. Okay, तो first point है parent material. So पहले heading को समझना जरूरी है. What is the parent material? Parent means जहां से first time originate हो रही है आपकी soil. Okay, parent material means जहां से वो firstly originate हो रही है. Okay, so the source of rock fragment that make up soil is पेरेंट मटेरियल. कि में जो फ्रेगमेंट होते हैं पीसीए, ठीक है, जिससे सॉइल बन रही है, ये कहां से आते हैं? पेरेंट रॉक से आते हैं. ओके, एंड विच में आइदर बी बेड रॉक और लूज सेडिमेंट ट्रांसपोर्टर एल्सवेयर बाय द वाटर, विंड और आइस. कि मींस ये सॉइल की जो फॉर्मेशन हुई है ये बेड रॉक से हुई है, पेरेंट रॉक से हुई है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट हुई है बाय द वाटर, बाय द विंड और बाय द आइस. किसी भी वे में हो सकती है. ओके, इसकी फॉर्मेशन. सो पेरेंट मटेरियल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डाउन साइड. ओके, सो हियर गिवन ओनली दिस मच कि जो सोर्स ऑफ रॉक फ्रेगमेंट है, ये जो पीस ऑफ रॉक्स है, इसी से फॉर्मेशन होती है सॉइल की. ओके, और ये जो है ये लूज सेडिमेंट से बनी हुई है, या कोई बेड रॉक होगी या लूज मटेरियल्स होगा, और वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय द वाटर, बाय द विंड और बाय द ग्लेशियर, और ड्यू टू दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होगी. ठीक है, अब गिवन डाउनवर्ड साइड पॉइंट और वन बाय वन इसको अंडरस्टूड करेंगे दिस डायग्राम को. First point, the surface
rocks are exposed to the process of withering and suffer decay and decomposition. Means this is earth surface. Suppose को this is earth surface. अब किसी की वजह से जो अर्थ सरफेस के तो ऊपर से लूज मटेरियल से कवर होता है, ओके। अब किसी वजह से जब ये रिमूव हो जाता है और डाउनवर्ड जो रॉक है वो एक्सपोज हो जाती है ऊपर, ठीक है। और जब वो एक्सपोज हो जाएगी तो उसके ऊपर प्रोसेस ऑफ विदरिंग, विदरिंग मीन्स यहाँ वेदरिंग से है, वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, वेदरिंग मीन्स रॉक जो ब्रेक डाउन होना, टूटना, ओके। अब यू नॉट ऑल आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा स्पेशली वेदरिंग कि ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, और कैसे रॉक डाउन ब्रेकडाउन हो रही है ड्यू द 3 प्रोसेस, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ओके। सो मेनी फैक्टर ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट ईयर, ओके। वेदरिंग मीन्स ब्रेकडाउन होना। तो और ब्रेकडाउन कैसे है, बाय द टेम्परेचर हो सकता है, बाय द प्रेशर हो सकता है, बाय द रेनफॉल हो सकता है, ठीक है, बाय द केमिकल रिएक्शन हो सकता है, बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। किसी भी में पहले क्या हुआ, रॉक एक्सपोज हुई, आफ्टर दैट ये ब्रेकडाउन हुई बाय द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, और विदरिंग जो प्रोसेस है वो कौन सी है, फिजिकल विदरिंग, केमिकल और बायोलॉजिकल, ओके। एंड सफर, फिर ये जो रॉक एक्सपोज होगी, फिर ब्रेकडाउन हुई, फिर सफर हुई डीके और डिकम्पोजिशन, फिर वो गलने और सड़ने लगी, डीके एंड डिकम्पोजिशन, ओके, ड्यू टू द वेदरिंग। एंड इन दिस प्रोसेस द रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइन पार्टिकल्स, ओके। जब रॉक्स एक्सपोज होगी उसके बाद वेदरिंग के थ्रू ये ब्रेकडाउन हुई, आफ्टर दैट सफर हुई डीके और डिकम्पोजिशन से, एंड इन दिस प्रोसेस योर रॉक आर कन्वर्ट इनटू फाइन पार्टिकल्स, ओके। ये फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी फिर जाके, ओके। और एक बेस बन गया सॉइल के लिए। क्यों, अभी तक ये फुली फर्टाइल सॉइल नहीं बनी, क्योंकि इसमें ओनली मिनरल्स हैं, अभी बहुत कुछ इसमें ऐड होना है, और ऐड क्या होना है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो एक बेस मिल गया सॉइल के लिए। And the soils of northern plain of India have been largely derived from the deposition work of Himalaya rivers, okay। मीन्स ये आपकी जो northern plain है, यहाँ जो मोस्ट फर्टाइल जो एलुवियल सॉइल है, दिस इज एलुवियल सॉइल, ओके। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है ड्यू द डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर्स, और दीज रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। ये आपका हिमालय है, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती है, और हीरे से फ्लो के ये अपने साथ मटेरियल लेती है, और जब प्लेन में पहुंचती है तो उनकी स्पीड वाटर की स्लो हो जाती है, और ड्यू टू दैट दे डिपॉजिट ऑल द मटेरियल इन द प्लेन एरियाज, ओके। तो ये जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है ड्यू द डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर्स, दोज आर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस, एंड the rivers deposit very fine particles of soil called alluvial soil, इसको दें alluvium, okay, VIUM। alluvium means those it is a fine particles, those are submitted by the rivers, okay। so क्या है, the rivers deposit very fine particles of the soil called alluvium in their plain, and during the course of their long journey spread over a hundred of kilometer areas। तो जो मूवमेंट हो रही है तो ये पूरे एक लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है, ओके। एंड इसकी फॉर्मेशन के लिए 1000 ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, ओके। सो वही हम लिखे कि द रिवर्स डिपॉजिट वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड एलुवियम इन देयर प्लेन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लॉन्ग जर्नी स्प्रेड ओवर 100 ऑफ किलोमीटर एंड 1000 ऑफ ईयर्स। एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में स्प्रेड हो रहा है, एंड 1000 ऑफ ईयर्स लगे इसकी फॉर्मेशन के लिए, ओके। ये बात हो रही थी पेरेंट मटेरियल की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, आपकी रॉक एक्सपोज हो रही है ऑन द सरफेस, आफ्टर दैट ड्यू टू द वेदरिंग ये ब्रेकडाउन हो रही है, आफ्टर दैट ब्रेकडाउन के बाद ये बाय द वाटर, बाय द विंड, बाय द एयर ट्रांसपोर्ट हो रही है और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही है, और उसकी वजह से एक बेस हमें मिल रहा है, इट प्रोवाइड अ बेस फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, ओके। और सम प्लेन एरिया इन आवर कंट्री वेयर most fertile soil, there is a alluvial soil are found due to the deposition work of rivers, or these rivers originate from the Himalayas and they deposit on the materials on the plain areas, okay। so this is the first point, parent material. Second point, relief. Relief means landform features, or you know all in our earth surface so many landform features are there like mountains, plains, plateaus, ठीक है, valleys, but we
here we talk about especially slope. Okay, so relief influence or process of soil formation in many way. The most important, we can say, स्लोप ऑफ लैंड कि हम बात करें लैंडफॉर्म फीचर की, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली अगर बात करें हम स्लोप की, यू नो कि सम एरिया की जो स्लोप होती है वो जेंटल होती है, जेंटल मीन्स कम स्लोप होती है। जस्ट सी दिस डायग्राम, दैट साइड आपका जो ये स्लोप है वर्टिकल है, स्टीप है, इसको बोलते हैं स्टीप, और ये जो है कम स्लोप होगी तो उसको बोलते हैं जेंटल स्लोप। ओके, अब ये जो स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप है इज आल्सो play important role for the formation of soil. Firstly, we talk about steep slope. So steep slope encourage the swift flow of water. अगर steep slope होगी तो यहाँ से जो water flow करेगी, जो river flow करेगी, वो fast करेगी, swift means fast. Okay, और जब water fast flow करेगा, they remove the topmost layer. जो topmost layer of soil की वो remove हो जाएगी, तो due to that आपको यहाँ पर थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलेगी। ओके, तो स्टीप स्लोप इंक्रीज द स्विफ्ट फ्लो ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या है, वाटर फास्टली फ्लो करेगा, सो स्टीप स्लोप्स यूजुअली हैव अ थिन सॉइल लेयर। ओके, इफ वी टॉक अबाउट जेंटल स्लोप, द एरिया ऑफ लो रिलीफ और जेंटल स्लोप जनरली एक्सपीरियंस डिपोजिशनल एंड हैव डीप लेयर ऑफ सॉइल। कि जब जेंटल स्लोप होती है तो मैक्सिमम रिवर का काम होता है डिपोजिशन करना, स्टीप स्लोप हो तो वो क्या करती है, इरोजन करती है। ओके, और जब जेंटल स्लोप हो तो वो डिपोजिशन करती है। ओके, तो डिपोजिशन होगी तो वहां पर एक डीप लेयर ऑफ सॉइल मिलेगी हमें। ओके, और जहां इरोजन ज्यादा होगा तो वहां पर थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलेगी। ओके, तो रिलीफ फीचर में हमने बात की ओनली स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप की। ओके, इफ स्टीप स्लोप इज देयर, सो क्या करेंगे, इट इंक्रीज द स्पीड फ्लो ऑफ वाटर। ओके, सो डीप स्लोप, सॉरी स्टीप स्लोप यूजुअली हैव अ थिन सॉइल लेयर। ओके, एंड इन द जेंटल स्लोप मैक्सिमम वर्क ऑफ रिवर होगा डिपोजिशन वर्क। ओके, और टू डिपोजिशन वर्क वी गेट हियर deep layer of soil. Okay, this is the second relief feature. So that means relief features also play an important role for the formation of soil. Okay, यहाँ formation जल्दी हो रही है, यहाँ पर slowly हो रही है, यहाँ thin layer get कर रहे हैं, यहाँ पर deep layer get कर रहे हैं। Okay, and now third point, climate. So climate is also a major factor that contribute to formation of soil. Okay, और climate की बात करें तो स्पेशली टेम्परेचर और मॉइस्चर की, मीन्स रेनफॉल, टेम्परेचर और रेनफॉल और मॉइस्चर वी कैन से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर रहे हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। अब कैसे करें, बोथ द केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द सॉइल आर यूजुअली एक्सेलरेट। मतलब गाड़ी का एक्सेलरेटर देते हैं तो गाड़ी फास्ट होती है, तो वही यहाँ पे एक्सेलरेट मींस फास्ट बाय द हाई टेम्परेचर एंड अबंडेंट ऑफ मॉइस्चर। मींस अगर हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगी तो रॉक की बेदरिंग ब्रेकडाउन ज्यादा फास्ट होगी। यू नो बेदरिंग केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। ओके, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फिजिकल बेदरिंग जल्दी होगी। यू नो आपकी रॉक जो होती है जब टेम्परेचर हाई हो तो वो एक्सपेंड करती है, टेम्परेचर लो होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, ड्यू टू दैट आपका मटेरियल लूज होता है और इमीडिएटली ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके, सो टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। एंड केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल रिएक्शन ऑलवेज विद द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ओके, तो दैट मींस केमिकल जो बेदरिंग होगी तो विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर होगी। सो इफ आपका हाई टेम्परेचर और अबंडेंट मॉइस्चर होगा तो ये आपकी जो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक है, सॉइल की जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो फास्ट होगी। ओके, एंड आर स्लो बाय द लो टेम्परेचर एंड लैक ऑफ मॉइस्चर। इफ टेम्परेचर लो होगा और लैक ऑफ मॉइस्चर होगा तो जो स्पीड है फॉर्मेशन सॉइल की वो स्लो होगी। ओके, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट। इफ हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल तो क्या होगा, फास्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होगी। इफ लो टेम्परेचर और लैक ऑफ मॉइस्चर होगा तो स्लो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन होगी। ओके, एंड तो यहां तक हो गया ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है नेचुरल वेजिटेशन। क्योंकि देखो आपकी रॉक्स ब्रेकडाउन हुई और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी तो बेस एक सॉइल होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी अभी इंक्रीज नहीं हुई।
इसमें अभी ओनली मिनरल्स हैं, इसमें ह्यूमस अभी ऐड होना है। और ह्यूमस क्या होता है, जब आपके डिकेड लीफ ऑफ मटेरियल, जब आपके प्लांट की लीव्स डिकेड होती हैं, गलती है और सड़ती है, वो सॉइल की जब मिक्सचर हो जाती है उसको ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस जो होता है वो सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन रखता है, होल्ड करके रखता है। ओके, और उसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सो वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ग्रोइंग इन सॉइल परफॉर्म्स सर्टेन विटल फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नेचुरल वेजिटेशन। ओके, सर डिकेड लीफ मटेरियल एड मच नीडेड ह्यूमस टू सॉइल thereby इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। कि जब आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जब लीव्स शेड डाउन होते हैं तो ये डिकम्पोज होते हैं, गलते सड़ते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। ओके, और यही ह्यूमस होता है, इसको ये कहते हैं सॉइल की इनसाइड मॉइस्चर को होल्ड करके रहता है, और उसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, सेकंड काम क्या है नेचुरल वेजिटेशन का, रूट्स होल्ड द सॉइल एंड सो प्रिवेंट इरोजन। जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल को बाइंड अप करके रहती है। ओके, उसको इजिली रिमूव होने नहीं देती है, तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी सेफ रहती है। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन, फर्स्ट पॉइंट, decayed leaf material add much needed humus to soil thereby increasing its fertility, and second, roots hold the soil and so prevent erosion, erosion नहीं होता है, soil वहां से remove नहीं होती है। okay, so this is your topic to discuss here. Firstly we discuss here what is the soil, after it we discuss importance of soil, and लास्ट पॉइंट सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट पेरेंट मटेरियल, एंड सेकंड इज रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, एंड फोर्थ वन natural vegetation. So this is your topic today. Thank you.